guys, welcome back to Tech Custom. In this video I have brought a new custom ROM for Redmi 4X. As you can see, this is the MIUI version, MIUI NFS 12.5 official trailer F1.2 beta version available for Redmi 4X. This is the latest build available by NFC Need for Speed. As you can see, Redmi 4X Android version, you will get the Android version 11.10 in this ROM. As you can see, this is the latest Android 10 available for NFC ROM. MIUI 12.5, and here is the security patch, as you can see, and here is the beta version. This is the beta version, official beta. Model name, as you can see, this is the ported ROM. As Louis Checkmate kernel is installed in this ROM, as you can see, 4.9.2.43. So today we will review this ROM. We will also check all the features, what are the features of this ROM, and there is additional NFC setting. As you can see, you will get all the features from here. You can customize it according to your use, whichever you want. As you can see, custom status bar is also available. Whichever you want, you can custom create it. You have to wait for few seconds. As you can see, custom status bar has been changed, and let me apply other one. Wait a second, it is a little bit laggy while applying the status bar, as you can see. And second one, as you can see, there are many custom status bar available. As you can see, you can apply it according to your use, whichever you want. As you can see, battery status bar MIUI 10 is also available. You can change it according to your whichever you want. It is working perfectly, and dual network icon is also available. As you can see, Volt is working, Geo is working perfectly fine, and HD is working perfectly. As you can see, you can change it according to your use, whichever you want. Date in status bar is also available. I will not review the other features. I will review only the NFC settings, and the change logs will also be written in the description, or I will tell you in the video. As you can see, Asian text notification is also available. Whichever you applied the Asian text color, that notification will be there in that color. And the QS styles is also available. QS title, as you can see, whichever you want, default, wavy, mountain, divided, ये आपको मिल जाएगा देखने लगे. पैनल स्टाइल मैं इंग्लिश बोल दिया, मुझे याद नहीं रहा था, तो मैं हिंदी कर देता हूँ वापस. यहाँ से आपको नेटवर्क सेटिंग्स मिल जाएगी देखने के लिए. नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर वो आपको स्पीड का मिल जाएगा देखने के लिए. नेट इसमें बिल्कुल ओके वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नेट में. और जो भी बग्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके. तो मैं वीडियो में बता देगा, आप देख सकते हो, वीडियो में नहीं बता देंगे मैं आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. एक्टिविटी आप लेआउट देख सकते हो. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इज आल्सो अवेलेबल, एज यू कैन सी. Vertical, as you can see, you can change it according to your whichever you want. Custom logo is also available. As you can see, logo is available. As you can see, secret logo. Here you can see, navigation bar is also available. You cannot disable it. If you want to disable it, you have to use the gestures. It is not temporary available from settings. And custom display is also available. Anti-flickering mode, use hide notch, adjust notch space, round corners is also available in this ROM. As you can see, here is the clear speaker. If clear speaker is working perfectly without any problem, as you can see, you can test it according to your use. And profile video call, custom ringtone is also available. Tap sound, and here is the sounds available. You can choose whichever you want. A screenshot sound, you can select it. Boot audio is also available, but it is little bit low, not loud. Notification and status bar is also available. Use new control center. As you can see, this is the new control center. You can switch it whichever you want. As you can see, this is the old one. Notification is the red icon, as you can see. Connection speed is also available. If you want to disable the custom connection speed, you can enable the other one. Default is also available, which is default available in the MIUI 12. Connection speed वो भी available है इसमें. तो बैटरी परसेंटेज आपको मिल जाएगा inside outside whichever you want. Date and time is also available. Text and size, you can check it according to your use. एंड वाईफाई इज वर्किंग. यहाँ पे वाईफाई वर्क कर रहा है, ब्लूटूथ वर्क कर रहा है. यहाँ पे सिम कार्ड कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे ब्लूटूथ मैंने यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करी थी ब्लूटूथ से, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे बिल्कुल ओके वर्क करता है यहाँ पे. एंड हॉटस्पॉट भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ओके वर्किंग है. यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट में कुछ ओके वर्क करता है. यहाँ पे आपको दिखाता है, यहाँ पे हॉटस्पॉट यहाँ पे टर्न ऑन हो चुका है. यहाँ पे हमारा हॉटस्पॉट, एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है बिल्कुल. और वाईफाई में आपको दिखाता हूँ, वाईफाई मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, मतलब पहले कनेक्ट कर रखा था यहाँ पे. एंड द बैटरी परफॉर्मेंस इज लिटिल बिट लो, एज यू कैन सी. बट मेरी बैटरी परफॉर्मेंस से वैसे मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस ओल्ड हो चुका है मोबाइल, तो यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी गिर चुकी है यहाँ पे. मतलब जैसे पीछे वाली और MIUI 12 की रोम की टेस्ट करी है, बस उससे थोड़ी सी कम है इसकी NFC की. एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जितने आप फीचर्स इनेबल करोगे उतनी आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी. तो यही सब था इसमें. ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको
ये आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल ओके वर्क करती है इसमें। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यही मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर रखा है शायद, वो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर हमारा वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा डाउन होगी, तो देख लेना अपने हिसाब से। वो सारे फीचर्स तो बाकी सेम ही है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी हम चेक कर लेते हैं, फेस अनलॉक और हमारा फेस डाटा की स्पीड, ये लाइटनिंग फास्ट है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बिल्कुल इजीली वर्क कर रहा है, इजीली डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वाइब्रेशन भी हमारी बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट में वाइब्रेशन ऑन, साउंड इज ऑल्सो अवेलेबल, और नेविगेशन बार में भी हार्डवेयर बटन में वाइब्रेशन बिल्कुल ओके वर्क करती है। स्पीड चेक कर लेते हैं। यू कैन सी स्पीड इज वेरी गुड इन दिस रोम, बट इज इट नॉट लाइटिंग फास्ट, इसे लाइटिंग फास्ट नहीं कह सकते हम इसे। अब यहाँ पे हो चुके हैं लाइटिंग फास्ट, जैसे कि आप देख सकते हो टाइम के साथ धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है स्पीड। तो हम फेस अनलॉक दे लेते हैं फिर से। फेस अनलॉक यहाँ पे हमारा कैसा है, यहाँ पे फिर से नहीं है, मतलब अभी फिंगरप्रिंट चेक कर रहा था, यहाँ पे फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये कितना फास्ट मिलेगा आपको। ये भी लाइटनिंग फास्ट है नहीं है। तो अगर डेली यूज़ करते चाहते हो कि आप इसे डेली यूज़ करें, तो आप ट्राई कर सकते हो इजीली। तो बग्स जरूर देख लेना, बग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फेस अनलॉक की स्पीड कैसी आपको मिलेगी देखने के। स्टे ऑन लॉक स्क्रीन मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और फेस अनलॉक एंड लाइट अप्स एज यू कैन सी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं स्पीड कैसी आपको स्पीड मिलेगी देखने के लिए। स्पीड तो काफ़ी ठीक मिल जाएगी आपको देखने के लिए इसमें। जैसे मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी टेस्ट स्पीड। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी इश्यू हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से आपको स्लो मिल रहा है देखने के लिए। बाकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसमें आपको देखने के लिए। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की दोनों की स्पीड, लाइटिंग फास्ट नहीं कम है, थोड़ी सी लाइटिंग फास्ट से कम है। ये आपको यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे मुझे मिल रहा था देखने के लिए। यहाँ पे मैंने यूज़ करा था यहाँ पे अपना डिवाइस, हम लॉग 18 टाइम्स एंड मैं अकाउंट आप यहाँ पे इजीली लॉगिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कोई स्पेशल आपको फीचर सारे सेम मिल जाएंगे देखने लगे। बैटरी परफॉर्मेंस भी वही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत NFC की थोड़ी सी कम है यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस। जितने आप फीचर्स इनेबल करोगे, जितने आप ज़्यादा इनेबल करोगे, तो आपकी बैटरी उतनी डाउन होती रहेगी यहाँ पे। फिर आपको कुछ एप्लीकेशन मिल जाएगी देखने के लिए। और सेफ्टी नेट यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा पास मिलेगा नहीं मिलेगा पास, वेदर द सेफ्टी नेट इज पास और नॉट। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ्टी नेट यहाँ पे हमारा पास है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और प्ले स्टोर भी हमारे यहाँ पे वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे प्ले स्टोर में भी। और ये कुछ आपको एप्लीकेशन मिलेंगे देखने के लिए, कोई सेम आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी देखने के लिए। यहाँ पे हम एंड टू द बेंचमार्क टेस्ट देख लेते हैं कितना आपको स्कोर मिल रहा है। बाकी इसमें टेस्ट नहीं हुआ है, एंड टू द बेंचमार्क यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे वो भी पता नहीं एक जगह स्टक हो जाता है। यहाँ पे मैंने कितनी बार करके देख लिया, रिस्टार्ट करके देख लिया, सब कुछ करके देखा, तो इसमें एंड टू द बेंचमार्क हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो जिसमें भी कंप्लीट होता है मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँ। और आपको कैमरा मिल जाएगा देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पे गुड, यहाँ पे आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक मिल जाएगी देखने के लिए। कोई पोर्ट्रेट मोड इसमें आपको अगर आपका कैमरा ठीक है तो वो करेगा इसमें। तो कोई खास नहीं होता है इसका कैमरा Redmi 4S का।